Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, students, let's start today's topic, and today's topic is prism. This is the last topic of the September exam syllabus. And student, we had discussed about the glass slab in the previous videos and the previous topics. What is the difference between the glass slab and the glass prism? As you have seen in the physics lab, this type of a glass, and which is called prism. And with a rectangular glass slab, this is the rectangular glass slab. What is the difference between prism and the rectangular glass slab? These two faces, opposite faces, are known as the refracting surfaces. Opposite faces are known as the refracting surfaces. But in the case of the glass slab, these refracting surfaces parallel to each other. If you will take these two, these are also parallel. If you will take these two, these are also parallel. But in the case of the prism, they are not parallel. These are the refracting surfaces. You can see this is the refracting surface, this is the refracting surface. ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, बट दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. बट ये पैरेलल नहीं है. यही एक प्रिज्म के अंदर एडवांटेज है, यही एक प्रिज्म के अंदर खूबी है, जो अपने अलग अलग फिनोमिनास को ये शो कर सकता है. जो ग्लास प्रिज्म कुछ नेचुरल फिनोमिनास को शो नहीं कर सकता, वो हमारा प्रिज्म कर सकता है. जैसे कि उन फिनोमिनास को हम सब जानते हैं कि प्रिज्म हमारा स्पेक्ट्रम बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. पढ़ेंगे लास्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द विजिबल स्पेक्ट्रम, बट वी नो अबाउट दिस. ओके, तो ऐसा क्यों हो पाता है बेटा, वो मैं तुम्हें सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ कि इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो पैरेलल नहीं है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्लास स्लैब है और जो प्रिज्म है, क्या उनमें डिफरेंस क्या है. तो सिंपल सा डिफरेंस याद रखेंगे. Refracting surfaces in case of the prism are not parallel to each other, they are inclined at some angle, and that angle, or you can say the angle between these two refracting surfaces is known as the angle of prism. और उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. जो इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल होता है, यहाँ पर दिखा रखा है एंगल A, that angle is known as the angle of prism. Okay students. दूसरा बेटा, इसमें तुम एक और पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होगे, जो ग्लास स्लैब और प्रिज्म के साथ तुम मैच कर सकते हो. अगर मैं ग्लास स्लैब में यहाँ पर एक इंसिडेंट ले रहा हूँ, यहाँ मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, फिर ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है. फिर क्या करते हैं बेटा, ये जो लाइट थी, ये लाइट को ऐसे सीधा आना था, नहीं आ पाई. लेकिन ये बाद में जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो ये दोनों लाइट्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, जिनके डिस्टेंस को तुम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, और इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हो. कि अब ये लाइट दोबारा से एमर्जेंट हो गई है, एमर्ज हो गई है इसी लाइट के साथ, लेकिन थोड़ा सा अपने पाथ से शिफ्ट हो गई है, लेकिन है अभी भी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अभी भी सेम है, थोड़ा सा शिफ्ट हुई है. अगर वो नॉर्थ में जा रही है तो वो भी नॉर्थ में ही जा रही है, लेकिन बट क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है, यहाँ पर नथिंग एल्स, एमर्ज हो गई है. हाँ, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी, ये डिफरेंट डायरेक्शन में चल पड़ी थी. जिस डायरेक्शन में ये वाली लाइट जा रही थी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई थी. बट लेकिन जब वो दोबारा डेंसर से रेयर में आती है लाइट, तो दोबारा उसी डायरेक्शन में आ जाती है जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट लाइट थी. कब? जब वो दोबारा डेंसर से रेयर में आती है, तो हम बोलते हैं एमर्ज हो गई है, दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाकर एमर्ज हो गई है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एमर्जेंट रे, इसलिए हम इसे एमर्जेंट रे बोलते हैं. अगर तुम बेटा प्रिज्म का केस देखते हो, तो प्रिज्म के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा. प्रिज्म में ये देखो, लाइट को सीधा जाना था, ये लाइट को सीधा जाना था, देख सकते हैं, ये लाइट को सीधा जाना था. चलो सीधा नहीं गई, मान लिया कि अगर वो डेंसर मीडियम में आई है, ये एयर है और ये ग्लास है, दिस इज द ग्लास. ठीक है, ग्लास प्रिज्म है ना.
तो अगर ये एयर टू ग्लास आई है, डेंसर मीडियम में एंटर हुई है, तो डेफिनेटली इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल हमेशा ड्रॉ किया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जहां पर मीडियम चेंज होता है। तो एयर से जैसी ग्लास में आएंगे, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसके ऊपर 90 डिग्री की लाइन लगानी है। ठीक है, अब उस 90 डिग्री की लाइन की तरफ इसको थोड़ा सा लाइट को बेंड कर दिया। ठीक है, फिर से वो जब डेंसर टू रेयर में जाने लगी है, तो हमें लगेगा कि वो इसके पैरेलल हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, इसमें जाके इमर्ज्ड हो जाएगी, बट नहीं हुई। देख सकते हो यहाँ पर तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल की तरफ तो मुड़ेगी नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, इधर चली गई। तो अब इस लाइट की प्रॉपर डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, ये दोबारा मर्ज हुई नहीं उसमें। तो इसको बेटा तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ये रूल होता है हमारे प्रिज्म का कि जब प्रिज्म में से लाइट क्रॉस होती है, तो जो ये वाली लाइट है जो बाहर आती है लाइट, इसकी दोबारा से जो बाहर आती है लाइट, ये हमेशा बेस की तरफ ही मुड़ेगी। अगर इस प्रिज्म को तुम उल्टा रख दोगे तो फिर ये लाइट ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर हो जाएगी, नजर से सारा डायग्राम ही रिवर्स हो जाएगा। ये मत सोचना ऊपर हो जाएगी तो मतलब इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज कभी भी नहीं होएगी। इसलिए इसको हम इमर्जेंट रे बोलते ही नहीं, इसको हम डेविएटेड रे बोलते हैं। दैट इज द डेविएटेड, ये डेविएट हो चुकी है अपने पाथ से। इस ये डेविएट का मतलब अब यहाँ पर अगर मैं अब कितने एंगल से वो डेविएट हुई है, कितने एंगल से उसने अपने पाथ को छोड़ दिया है, तो वो एंगल कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना बेटा। उसके लिए मैं यहाँ पर इससे तुम्हें शो करता हूँ, देखना। ये है बेटा, ये मेरी है इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे जिसको सीधा जाना था, और ये है मेरे पास अब फाइनली लाइट को जाना तो ऐसे था, बट लाइट ऐसे ना जाकर ये इतने एंगल से मुड़ गई, ऐसे अब ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, इसको देखना, सिर्फ तुम इसको देखना, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट कितने एंगल से मुड़ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, that angle is known as the angle of deviation, not angle of emergence। ये emergent angle नहीं है, this is the deviate angle। तो this angle is known as angle of deviation। ये जो पीछे एंगल बना, अगर मैं इस अपनी लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, ये जो एंगल बनेगा इसको d से लिख देते हैं, डेविएशन एंगल। तो देख सक रहे हो ना कि ये मेरी लाइट थी, ध्यान से देख लेंगे दोबारा। ठीक है, ये ऐसे जानी थी लेकिन ये ऐसे गई, तो ये वाला जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप कि तुम्हें ये एंगल समझ आ गया होगा। तो प्रिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, पढ़ सकते हैं तुम भी पढ़ सकते हो। प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज अ ग्लास बाउंडेड बाय द टू प्लेन सरफेसेस inclined to each other at an angle। Two surfaces are called the refracting surfaces and angle between them is called the refracting angle of the prism or simple angle of prism। रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो और एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो, और इसको डिनोट किया जाता है ज्यादातर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया तुम्हें समझाने के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें बता दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म बता दिया। डिफरेंस क्या है ग्लास स्लैब में और तुम्हारे इस प्रिज्म में, कि इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लाइन है कुछ एंगल पर। ठीक है, यही इसकी एक खासियत है, यही इसकी एक खूबी है, ये भी ध्यान रखना, आने वाली वीडियोस में देखते हैं उसको। और उसके बाद ये इमर्ज हो जाती है ग्लास स्लैब में, इसके अंदर वो इमर्ज नहीं होती, इसके अंदर डेविएट हो जाती है, अपने पाथ को छोड़ चुकी होती है। फाइनली लाइट हमारी कहां पर मुड़ती है? फाइनली लाइट जो बेंड होती है, डेविएट होती है, वो बेस की तरफ होती है, ध्यान रखना। प्रिज्म जिस मर्जी डायरेक्शन में रखो, लेकिन तुम्हें ये वाली लाइट को बेस की तरफ रखना है। अगर ऐसा तुम माइंड में सेट करते हो ना कंसेप्ट, गलती नहीं करोगे, नहीं तो बच्चे डायग्राम गलत बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक एक्टिविटी बेटा इसके अंदर तुम्हें करनी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक की हुई है एक्टिविटी। लिंक इन द सेंस एक्टिविटी के जो स्टेप्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो एक्टिविटीज को। तो बेटा वो एक्टिविटी क्या है, ये हम अपना परफॉर्म करते हैं इन द फिजिक्स लैब। एक कार्डबोर्ड लिया जाता है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा फील दूंगा, एक्टिविटी का फील ले लेना थोड़ा सा। ये एक कार्डबोर्ड होगा, कार्डबोर्ड पे तुम क्या करोगे, पेपर को फिट करोगे, 4 पेन से एक पेपर लगाओगे, ऊपर तुम उसके ग्लास स्लैब रखोगे। यहाँ पर तुम क्या करोगे, अपनी मर्जी से एक नॉर्मल लगाकर मतलब प्रिज्म रखोगे, प्रिज्म को दबा दोगे एक बार पेपर के ऊपर, अच्छे से दबा के प्रिज्म को उठा लेना। दबाओगे तो उसकी लाइन पेपर के ऊपर थोड़ी सी इम्बोस्ड हो जाएंगी, तो उन लाइंस के ऊपर पेंसिल से डॉट कर लेना और प्रिज्म की शेप बन जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल में और इंसिडेंट के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसके साथ तुमने इस एंगल पर 2 पिन लगाने हैं, पिन लगा देने हैं यहाँ पर, और
और इस ये मान लो इसका कोई नाम नहीं है तो ए ही हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तुमने पिन लगाए हैं, अब तुमने इधर आ जाना है, इस साइड आ जाना है, और इस साइड आकर ऐसे तुमने उन पिन्स को यहाँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से देखना है, और यहाँ पर दो पिन्स को तुमने सेट करना है, ऐसा सेट करना है सच दैट दिस पिन्स कैन बी सीन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ये वाले पिन्स हैं तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नजर आने चाहिए। जब तुम यहाँ से देखोगे तुम्हें पिन्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि तुम्हारी आंखों के सामने है, और उन पिन्स को देखते हुए तुम यहाँ पर दो पिन्स लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें कुछ एक्टिविटी करनी है। आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी कि तुम्हें परफॉर्म कैसे करनी है। इफ यू आर गेटिंग टू मी देन यू कैन डू दिस। तो यहाँ पर दो पिन लगाइए, एंगल आई सेट किया हमने अपनी मर्जी से, ये नॉर्मल तो हम लगाएंगे, ये एंगल अपनी मर्जी से सेट करके दो पिन लगा दिए, ठीक है। फिर उन पिन्स को इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर देखा तो यहाँ पर दो पिन और लगाने हैं। अब ऐसे पिन लगाने हैं कि चारों पिन एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं तो चारों पिन एक ही लाइन में हों, बस तुम्हें पहले वाला पिन दिखे, बाकी पिन ना दिखे, ठीक है। फिर तुमने इन पिन्स को हटाना है और इन ऐसे लाइंस को जोड़ देना है, ये डायग्राम कंप्लीट कर देना है। तो तुम्हें ये वाली लाइन अपने आप कितनी डेविएट हुई है वो पता चल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आंसर आता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालें। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने में क्या मुश्किल है, प्रिज्म को लो, दबाओ, पेपर पे दबाओ, उठा लो, डी से इस एंगल को मेजर कर लो, एंगल ऑफ प्रिज्म निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आज हम करेंगे, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।